Good morning, everyone. Faculty Development Program organized by Department of Higher Education on best practice in development of e-content. This is a PowerPoint based video lecture for class BCom second year related with the management group paper first, that is principle of statistics, unit first, on the topic census versus sample survey and method of sampling by Jaykant Gupta, Assistant Professor Commerce, Government Indira Gandhi Home Science College, Sahdol. First of all, we have to discuss on the objective of the study from this video lecture, what we have to learn, what we gain. So first, we get an in-depth knowledge of census investigation and sample investigation, that what is census investigation and what is sample investigation. Secondly, we make the comparison and suitability of the different methods of investigation. That means in which types of population we can use a different methods of investigation. Thirdly, we get the principal concept about the sampling, what sampling means, what kinds of different sampling techniques we are using in case of sample investigation. And lastly, what we have to learn, that is the practical application of the different methods of sampling. ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको नहीं पता है, तो उस कंटेंट का या उस चीज का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको सैम्पलिंग मेथड का प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी विद एग्जांपल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, now it's turn to the content of the video lecture. First, that we have to discuss, that is census versus sample, that what is census investigation and what is sample investigation. After that, we make the comparison between the census versus sample, that what is the comparison between census investigation and sample investigation. After that, we move forward towards the methods of sampling, different kinds of methods of sampling, that is the probability sampling and non-probability sampling. After that, the types of probability sampling method, different types of probability sampling methods are there. And lastly, we have to discuss, that is the type of non-probability sampling method. This is the content that we have to discuss on this PPT based video lecture, and that is very important for become second year student and also for the student that are preparing for the net. This topic is very much relevant with the research methodology that we are using in the research. Okay, starting with the content. First, we have to discuss about the census investigation. What is census investigation? तो बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं कि सेंसस इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। सेंसस इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि आपका जो रिसर्च एरिया है, जो भी आपका यूनिवर्स है, जो भी आपका पॉपुलेशन है, उसकी ईच एंड एवरी यूनिट को डिफाइन करना, ईच एंड एवरी यूनिट से डेटा कलेक्ट करना, उसे हम कहते हैं सेंसस इन्वेस्टिगेशन। सेंसस इन्वेस्टिगेशन में पॉपुलेशन की हर एक यूनिट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इसमें किसी भी यूनिट को स्किप नहीं किया जाता, वेर इन ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्लूडेड इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। आफ्टर दैट हम बात करते हैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन। सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? सैंपल इन्वेस्टिगेशन का यूज वहां किया जाता है जब आपका यूनिवर्स बहुत बड़ा हो, मतलब आप यूनिवर्स का एरिया, जो आपका रिसर्च का एरिया है, वो बहुत बड़ा हो।
तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप वहां सेंसस इन्वेस्टिगेशन कर पाए, क्योंकि उसमें टाइम भी ज्यादा जाएगा और पैसे भी ज्यादा लगेंगे। तो सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि जो आपका यूनिवर्स है, जो भी आपका पॉपुलेशन है, जो भी उस पॉपुलेशन की जो भी यूनिट है, उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को आप सिलेक्ट कर लें। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को आप क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें, और उस रिप्रेजेंटेटिव यूनिट की आप स्टडी करें। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना कि जब जब आप बाजार जाते हैं, जब आप बाजार जाते हैं और आपको खरीदना है, चावल खरीदना है, तो आप जब दुकानदार से चावल के लिए पूछते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी बोरी में जितना भी, मान लीजिए 25 किलो चावल है, तो वो ऐसे फैला के दिखा देता है कि सर देख लीजिए सर इसकी क्वालिटी। नहीं ना, वो ऐसे थोड़ा सा चावल निकाल के आपको दिखाता है और कहता है सर ये क्वालिटी का चावल है, और आप उस थोड़े से, उस पूरे 25 किलो की बोरी में से मुश्किल से 100 ग्राम चावल देख के आप उस पूरे बोरी में जो भी चावल है उसकी क्वालिटी आप बता देते हैं। तो सैंपल इन्वेस्टिगेशन वैसा ही है। अगर आपका पॉपुलेशन का एरिया, आपका रिसर्च का एरिया बहुत बड़ा है, तो आप उस पॉपुलेशन में या उस यूनिवर्स से कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को सिलेक्ट कर लें, उसकी स्टडी करें, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आप पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां आपको क्लियर होगा कि सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। सेंसस इन्वेस्टिगेशन में हर एक इकाई, मतलब ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स आर इंक्लूडेड इन द कलेक्शन ऑफ डेटा, but in case of sample investigation we use only the representative unit of the population for collecting the data, and we can draw on conclusion on the basis of that representative unit. Okay, एक डायग्राम है जो, जिसे आप देख के थोड़ा समझ जाएंगे कि ये क्या होता है सेंसस और सैंपल। देखिए ये बहुत ही अच्छा एक आपका रिसर्च का एरिया है, एक यूनिवर्स है। अगर हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जितने भी पर्सन, जितने भी मेंबर, जितने भी यूनिट यहाँ खड़े हैं, आपको हर एक से क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। हर एक रेस्पोंडेंट से आपको डेटा कलेक्ट करना है। लेकिन अगर मैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन की बात करूं, तो आप क्या कर रहे हैं, उस यूनिवर्स से, उस पॉपुलेशन से, उस रिसर्च एरिया से कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को सेलेक्ट कर रहे हैं और उनसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर होगा कि सेंसस और सैंपल इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन की, कि सेंसस और सैंपल में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो मैंने अभी आपको बताई, कि जो सबसे पहला पॉइंट है कि सेंसस इन्वेस्टिगेशन में हर एक यूनिट से आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं करते। सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन में आप पॉपुलेशन से कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को आप सेलेक्ट करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्यूमरेटेड in case of census investigation, but in case of sample we choose the representative unit from the population. उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या है, इन्यूमरेशन कंप्लीट एंड पार्शियल। बिल्कुल सही बात है, सेंसस में जो इन्यूमरेशन की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है, और सैंपल इन्वेस्टिगेशन में रिप्रेजेंटेटिव की, इसलिए वो पार्शियल होती है। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट देते हैं कि हर एक ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है, और सैंपल में क्या किया जाता है, सिर्फ हैंडफुल यूनिट। हैंडफुल यूनिट के मतलब क्या होता है कि जिसमें पॉपुलेशन की यूनिट कम हो लेकिन वो पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव हों। अगर सैंपल इन्वेस्टिगेशन में आपकी जो यूनिट्स हैं अगर वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए टाइम की बात कर रहा है, तो सेंसस जहां आपको हर एक ईच एंड एवरी यूनिट को अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है ये, कि अगर आपको पॉपुलेशन की हर एक यूनिट का डेटा कलेक्ट करना है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा।
और अगर हम बात करें सैंपल इन्वेस्टिगेशन की तो बहुत हैंडफुल यूनिट रहती हैं वहां, बहुत कम यूनिट रहती हैं जिससे आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना रहता है, तो वो एक फास्ट प्रोसेस है। उसके बाद कॉस्ट की बात करें, डेफिनेटली सेंसस एक कॉस्ट एक्सपेंसिव मेथड है और सैंपल एक इकोनॉमिकल मेथड है। लेकिन ये सब होने के बावजूद अगर हम रिजल्ट की बात करें, क्योंकि सेंसस इन्वेस्टिगेशन में बायस्डनेस और आपका जो सैम्पलिंग एरर है वो बहुत कम होता है सेंसस इन्वेस्टिगेशन में। डेफिनेटली आप हर एक यूनिट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस कम है। ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये यूनिट हमारे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है। लेकिन सैंपल में तो ऐसा चीज होता है, वहां मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना पड़ता है। जो भी रिसर्च करते हैं या कर रहे हैं वो पता है उनको कि कभी भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब भी करते हैं तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 5% रखते हैं। क्यों? क्योंकि सैम्पलिंग का एरर हो सकता है, तो रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट सेंसस का माना जाता है और सैंपल का थोड़ा सा कम रिलायबल रहता है। लेकिन अगर आपका पॉपुलेशन की यूनिट जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन में अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स को, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट रिलायबल और एक्यूरेट हो लगभग लगभग, लेकिन उसमें मार्जिन ऑफ एरर रखना पड़ता है। एंड लास्ट कि सेंसस और सैंपल इन्वेस्टिगेशन किस टाइप के यूनिवर्स या पॉपुलेशन के लिए अप्रोप्रिएट है। तो देखिए, सेंसस इन्वेस्टिगेशन आप हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए कर सकते हैं, जहां बहुत वैरायटी के यूनिट्स हों, बहुत वैरायटी के रेस्पोंडेंट हों, वहां आप सेंसस इन्वेस्टिगेशन करिए। और जहां कॉमन वैरायटी के पॉपुलेशन हो वहां आप होमोजीनियस, जहां कॉमन वैरायटी के हो जो होमोजीनियस नेचर के हो वहां आप सैंपल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन क्लियर है। फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूं पूरे 6 पॉइंट्स को। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट सेज कि सेंसस इन्वेस्टिगेशन में हर एक यूनिट का सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है, कोई भी यूनिट को स्किप नहीं की जाती। वेयर एज इन केस ऑफ सैंपलिंग मेथड आप पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को सेलेक्ट करते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। दूसरा, सेंसस इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट इन्यूमरेशन की प्रोसेस होती है, वहीं सैंपलिंग में पार्शियल होती है, क्योंकि वहां आप पूरे यूनिट की स्टडी नहीं कर रहे हैं, वहां आप सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट की स्टडी कर रहे हैं। थर्ड बहुत कॉमन पॉइंट है कि सेंसस इन्वेस्टिगेशन में हर एक पॉपुलेशन की यूनिट की स्टडी करना होता है, लेकिन सैंपल इन्वेस्टिगेशन में ओनली हैंडफुल यूनिट, मतलब दैट मीन्स द यूनिट दैट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, उसकी स्टडी करना है। फोर्थ पॉइंट, सेंसस इन्वेस्टिगेशन इज टाइम कंज्यूमिंग वेयर एज सैंपल इन्वेस्टिगेशन इज अ फास्ट प्रोसेस। उसके बाद सेंसस इन्वेस्टिगेशन एक कॉस्ट एक्सपेंसिव मेथड है और सैंपल इन्वेस्टिगेशन एक इकोनॉमिकल मेथड है। लेकिन जहां अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो ज्यादा रिलायबल रिजल्ट सेंसस इन्वेस्टिगेशन के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सैंपलिंग एरर के चांसेस कम होते हैं और सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन में हम मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं। जैसा मैंने बताया कि रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चलते हैं, तो हम कुछ मार्जिन लेके चलते हैं क्योंकि हो सकता है कि हमारे सैंपल चूज करने में कोई एरर हो गया हो, दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग एरर। तो हम कुछ मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं। और बात करते हैं एप्रोप्रिएट की, तो सेंसस इन्वेस्टिगेशन वेराइटी ऑफ पॉपुलेशन यूनिट मतलब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए यूज होता है, और सैंपल इन्वेस्टिगेशन कॉमन यूनिट मतलब होमोजीनियस पॉपुलेशन की जो यूनिट हो वो होमोजीनियस हो, वहां आपका सैंपल इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट ज्यादा अच्छे होंगे। तो मेरे ख्याल से सेंसस इन्वेस्टिगेशन और सैंपल इन्वेस्टिगेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड दैट इज द मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। ये मेथड्स ऑफ सैंपलिंग क्या है कि जो सैंपल इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें सैंपल को किस तरह चूज किया जाए। अभी मैंने बताया था कि सेंसस इन्वेस्टिगेशन में ईच एंड एवरी यूनिट
मतलब हर एक यूनिट की आपको स्टडी या उससे डेटा कलेक्ट करना होता है, लेकिन सैंपल में तो ऐसा नहीं होता। सैंपल में तो आपको उस पॉपुलेशन से रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को चुनना होता है। तो उसको चूज करने की कौन कौन सी मेथड होती है, दैट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तो मेथड ऑफ सैम्पलिंग में दो टाइप की मेथड हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। फर्स्ट दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड सेकंड दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। और ये जो मेथड होती है ये क्या होती है, अपने पॉपुलेशन से, अपने रिसर्च एरिया से, अपने यूनिवर्स से सैंपल को सेलेक्ट कैसे करें, क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है उसको सेलेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ दो मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड सेकंड दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। नाम समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो शब्द अगर मैं प्रोबेबिलिटी का एक सिनोनिम्स कहूं तो कह सकता हूं रेंडमनेस, है ना। प्रोबेबिलिटी वहीं काम करती है जहां रैंडम एक्सपेरिमेंट हो। ये प्रोबेबिलिटी की एक एसेंशियल कंडीशन है कि अगर रैंडमनेस नहीं है तो प्रोबेबिलिटी काम नहीं करेगी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, जब भी आप किसी भी यूनिवर्स से, जब भी आप कोई भी यूनिट को सेलेक्ट करते हैं तो हर एक यूनिट को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है। मतलब क्या कि ईच एंड एवरी यूनिट हैव द इक्वल चांस टू बी चूजन। मतलब अगर किसी आपके पॉपुलेशन एरिया में, अगर आपके किसी पॉपुलेशन एरिया में 1000 यूनिट है तो 1000 यूनिट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। All the member have an equal opportunity to be the part of sample। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि हर एक यूनिट सैंपल का पार्ट बने, उसकी प्रोबेबिलिटी या अपॉर्चुनिटी सेम होती है। और ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में कौन कौन से टाइप के प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड होते हैं। तो देखिए मेनली मैंने 4 प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को यहां डिफाइन किया हुआ है और उसके पिक्टोरियल डायग्राम बने हुए हैं जो आपको बहुत इजी तौर पे इसको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट व्हाट इज दैट, फर्स्ट दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। क्या होता है ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, नाम समझिए सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड एक सबसे आसान प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है जिसमें आप पॉपुलेशन या यूनिवर्स की यूनिट को रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, बहुत ही रैंडमली। मान लीजिए आपके आपके रिसर्च एरिया जो भी आपका यूनिवर्स है वहां 1000 यूनिट है। कितनी है, 1000 यूनिट। और आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड के हिसाब से उसको चूज करना है। तो आप किसी भी यूनिट को चूज कर लेंगे, लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड वहां यूज किया जाता है जहां पॉपुलेशन का नेचर होमोजीनियस हो। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड को यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप नॉर्मली अपने पॉपुलेशन या यूनिवर्स से रैंडमली रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को क्या कर रहे हैं, आप सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। अब काफी लोग को अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझाता हूं। आपने सुना होगा लॉटरी, लॉटरी सुना है, या वो सुना होगा कि जब बाउल में चिट डाल देते हैं और ऐसे हाथ डाल के कोई भी चिट निकाल लेते हैं, तो देखिए उसमें जितने भी यूनिट होंगे उस बाउल के अंदर, जितनी भी चिट होंगी, हर किसी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी और रेंडमली आपने किसी को सेलेक्ट कर लिया। तो दैट इज नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। और बहुत ध्यान रखिएगा ये होमोजीनियस नेचर ऑफ पॉपुलेशन में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के। दूसरी मैं बात करूं अगर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड की। सिस्टमैटिक नाम समझ में आ रहा है कि आपको जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी पॉपुलेशन की यूनिट है, सबसे पहला काम करना है उसको अरेंज करिए। अरेंज कैसे करना है, हो सकता है आप उसको अल्फाबेटिकल अरेंज कर लीजिए,
हो सकता है आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग मेथड में सबसे पहले आपको पॉपुलेशन की यूनिट को क्या करना है, अरेंज करना है। चाहे आप अल्फाबेटिकल करिए, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर आप क्लासरूम की बात करें आप रोल नंबर वाइज अरेंज कर लीजिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो पहली यूनिट होती है उसको आप रेंडमली सेलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट को क्या करिए, रेंडमली, और उसके बाद जितनी यूनिट आप सेलेक्ट करेंगे वो रेगुलर इंटरवल के बाद होगा। इसीलिए इसको कहते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड। एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास है बीकॉम सेकंड ईयर की, और बीकॉम सेकंड ईयर में टोटल स्टूडेंट है कितने, 100। कितने स्टूडेंट हैं, 100। तो सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग मेथड से अगर मुझे वहां बच्चों को चूज करना है तो सबसे पहला काम करूंगा, मैं सारे बच्चों को या तो मैं अल्फाबेटिकली बैठा दूं या मैं उनको रोल नंबर वाइज बैठा दूं। तो सबसे पहला काम मैंने उनको अरेंज किया। उसके बाद मैंने पहले किसी बच्चे को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। हो सकता है वो नाम हो सकता है वो रोल नंबर 3 हो सकता है वो रोल नंबर 5 हो। किसी पहली यूनिट को हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैंने बोल दिया कि 3-3 के गैप में यूनिट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब रेगुलर इंटरवल के बाद हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि देखिए कि पहली यूनिट जो सेलेक्ट हुई है वो दूसरे नंबर का है ग्रीन, और उसके बाद हर किसी के बीच में 2-2 का गैप है। तो मतलब रेगुलर इंटरवल के बाद आप उस यूनिट को सेलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग मेथड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड, जिसमें होमोजीनियस पॉपुलेशन में सिंपल आप किसी भी पॉपुलेशन यूनिट को सेलेक्ट कर लेते हैं, और दूसरा सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग मेथड जिसमें पहली यूनिट को तो आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद की सारी यूनिट को एक रेगुलर इंटरवल के बाद। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट सैंपलिंग मेथड है और ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का। एग्जांपल क्या है इसका, मान लीजिए आप का जो रिसर्च एरिया है, आपका जो यूनिवर्स है, उसमें 4 वैरायटी के लोग रहते हैं। कितने वैरायटी के, 4 वैरायटी के लोग। हो सकता है एक हो हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख, चौथा ईसाई। ये 4 वैरायटी के लोग रहते हैं, ठीक है। और ये 4 वैरायटी के लोग आपके उस रिसर्च एरिया में रहते हैं। तो मेरे को क्या करना है कि हिंदू का एक ग्रुप बनाओ, मुस्लिम का एक ग्रुप बनाओ, सिख का एक ग्रुप बनाओ और ईसाई का एक ग्रुप बनाओ। देखिए आपके पॉपुलेशन में कितनी वैरायटी है, मतलब एक आपके उस पॉपुलेशन में 4 वैरायटी के लोग रह रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक वैरायटी के ग्रुप को एक ग्रुप में रख दिया, एक वैरायटी के लोगों को एक ग्रुप में रख दिया और दूसरे वैरायटी के ग्रुप को दूसरे ग्रुप में रख दिया। इस ग्रुप को हम कहते हैं स्ट्रेटा लेयर। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटा लेयर। तो देखिए स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, मतलब ऐसी पॉपुलेशन जिसमें बहुत वैरायटी के आपकी यूनिट्स हैं, वैरायटी बहुत है, तो हम क्या करेंगे कि एक कॉमन ग्रुप में एक वैरायटी के लोग को रखेंगे, ठीक है। जैसे हिंदू का एक ग्रुप बना दिया, मुस्लिम का एक ग्रुप बना दिया, सिख का एक ग्रुप बना दिया और ईसाई का एक ग्रुप बना दिया। अब मेरे पास क्या हो गया, 4 स्ट्रेटा लेयर हो गए, 4 ग्रुप हो गए, 4 सेक्शन हो गए। तो हर एक सेक्शन से मैं रेंडमली सेलेक्ट कर लूंगा। हिंदू से मैंने 2 लोग को सेलेक्ट कर लिया, मुस्लिम से मैंने 2 लोग को सेलेक्ट कर लिया रेंडमली, सिख से मैंने 2 लोग को सेलेक्ट कर लिया और ईसाई से मैंने 2 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड, जिसमें आप क्या करते हैं कि कॉमन वैरायटी का एक ग्रुप बनाते हैं। और ये किस पॉपुलेशन में यूज होता है, हेट्रोजीनियस। एक बहुत अच्छा मैंने देखा है, जब मैं नेट का पेपर दे रहा था तो एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, उसमें लिखता है कि ऐसी कौन सी सैंपलिंग मेथड है जो होमोजीनियस विद इन द ग्रुप हो और हेट्रोजीनियस बिटवीन द ग्रुप हो। बात समझिएगा, होमोजीनियस विद इन द ग्रुप एंड हेट्रोजीनियस बिटवीन द ग्रुप। तो उसका आंसर है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड,
क्योंकि स्ट्रेटिफाइड में कॉमन वैरायटी के लोग एक ग्रुप में रहते हैं, तो दैट मीन्स होमोजीनियस विद इन द ग्रुप, और 4 वैरायटी के ग्रुप बने हुए हैं तो हेट्रोजीनियस बिटवीन द ग्रुप। तो होमोजीनियस विद इन द ग्रुप एंड हेट्रोजीनियस बिटवीन द ग्रुप का आंसर है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड। अगले फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें, दैट इज क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग मेथड। देखिए जैसे स्ट्रेटिफाइड हेट्रोजीनियस में यूज होता है, वैसे क्लस्टर भी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में यूज होता है, लेकिन यहां ग्रुप बनाने की वैरायटी थोड़ी अलग है। हम सेम एग्जांपल लेते हैं, क्लस्टर में भी हम सेम एग्जांपल लेते हैं। हम बोलते हैं हमारे पॉपुलेशन में 4 वैरायटी के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। लेकिन हमने स्ट्रेटिफाइड में क्या किया था, हिंदू को एक ग्रुप में रखा था, मुस्लिम को एक ग्रुप में रखा था, सिख को एक ग्रुप में रखा था और ईसाई को एक ग्रुप में रखा था। लेकिन क्लस्टर में हम ऐसा नहीं करेंगे। क्लस्टर में हम क्या करेंगे, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख और एक ईसाई को एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में भी ऐसे ही करेंगे, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख और एक ईसाई, ऐसे करके हम ग्रुप बना लेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें डिफरेंट वैरायटी का एक ग्रुप बन रहा है, डिफरेंट वैरायटी का क्या हो रहा है, एक ग्रुप, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर। स्ट्रेटिफाइड में ग्रुप को कहते हैं स्ट्रेटा लेयर, और क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग में हम उस ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लस्टर। तो देखिए डिफरेंट वैरायटी का एक ग्रुप, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को एक ग्रुप में रखो, एक एक लोग को, फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक ग्रुप में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के ग्रुप बन रहे हैं। इसमें कॉमन वैरायटी के ग्रुप नहीं बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का एक ग्रुप बन रहा है, और उसको हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर। और इसमें एक और बात ध्यान रखने की है, इसमें हम किसी भी ग्रुप से यूनिट को सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि पूरे ग्रुप को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देखिए इस डायग्राम में, देखिए क्लस्टर में, पूरे क्लस्टर में गोला लगा हुआ है, पूरे क्लस्टर में क्या लगा हुआ है, गोला, मतलब हम पूरे क्लस्टर को ही चूज कर लेते हैं, ना कि उस ग्रुप के अंदर की एक यूनिट को। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये 4 जो मैंने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। फर्स्ट दैट इज रैंडम सैंपलिंग मेथड, सेकंड दैट इज सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग मेथड, third that is stratified random sampling method, and fourth that is cluster random sampling method। और ये चारों probability sampling method के पार्ट हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी काम करती है। यहाँ रिसर्चर अपनी मर्जी से किसी भी यूनिट को चूज नहीं कर सकता है, वो उसको रेंडमली सेलेक्ट करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम किसमें, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में। और ये आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। जिस तरह प्रोबेबिलिटी में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी काम करती है, इसमें क्या, इसमें रेंडमनेस काम नहीं करता। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में रेंडमनेस काम नहीं करता है। ठीक है, और यहां किसी भी पॉपुलेशन से यूनिट चूज करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल प्रोबेबिलिटी या इक्वल चांस नहीं होता है। ठीक है, इसके हम टाइप्स की बात करते हैं, कौन कौन सी मेथड्स हमको पढ़नी है। ये मोस्टली 4 मेथड पढ़नी है। फर्स्ट दैट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग, सेकंड दैट इज वॉलेंटरली रेस्पॉन्स सैंपलिंग, थर्ड पर्पसिव सैंपलिंग, एंड फोर्थ दैट इज स्नोबॉल सैंपलिंग। देखिए नाम से ही कुछ कुछ क्लियर है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं कन्वीनियंस सैंपल की, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, जो इजिली अवेलेबल हो जाए। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, जो इजिली अवेलेबल हो जाए। तो देखिए कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड में एक रिसर्चर उसी यूनिट को सेलेक्ट करता है जो बहुत इजिली अवेलेबल हो, बहुत इजिली मिल जाए। तो देखिए डायग्राम में देखिए, वो दूर दूर के रेस्पोंडेंट को सेलेक्ट नहीं कर रहा है, वो पास पास के रेस्पोंडेंट को सेलेक्ट कर रहा है, मतलब मोस्ट एसेसिबल रेस्पोंडेंट, मतलब जो बहुत इजीली से आपको मिल जाए। लेकिन एक बात का इसमें खतरा जरूर रहता है, एक बात का खतरा इसमें क्या रहता है कन्वीनियंस सैंपलिंग में, कि जो आप रेस्पोंडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आप पॉपुलेशन की यूनिट को सेलेक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, क्योंकि आपने उन यूनिट को सेलेक्ट किया है जो आपको आसानी से मिल जाए। तो हो सकता है कि वो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करता हो, और यहां आपका रिजल्ट गलत हो सकता है।
सेकेंड, अगर मैं बात करूं वॉलेंट्रली रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, ये क्या होता है? वॉलेंट्रली रिस्पॉन्स मतलब ऐसे कुछ रेस्पोंडेंट होते हैं जो खुद से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। ऐसे कुछ रेस्पोंडेंट होते हैं जो खुद ब खुद क्या करना चाहते हैं? इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। वहां रिसर्चर चूज नहीं करता है, वहां रेस्पोंडेंट खुद आके जानकारी दे रहा है। समझ में आ रहा है? दैट इज नोन एज वॉलेंट्रली रेस्पॉन्स। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि उसमें बायस्डनेस ना हो सकता है जो रेस्पोंडेंट आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है उसमें बायसनेस हो, क्योंकि उसको आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा से आके आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। ठीक है? तो कन्वीनियंट सैंपल का मतलब होता है जो इजिली अवेलेबल हो जाए, और वॉलेंट्रली रेस्पॉन्स सैंपलिंग का मतलब होता है ऐसे रेस्पोंडेंट जो खुद अपनी इच्छा से इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पर्पसिव सैंपलिंग, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज जजमेंट सैंपलिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। पर्पसिव सैंपल क्या होता है? पर्पसिव मतलब आपका जो रिसर्च है, आप जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आप उसके हिसाब से अपने सैंपल को सेलेक्ट करिए, इसीलिए इसका नाम है पर्पसिव। मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, है ना, आप उसके हिसाब से सैंपल को सिलेक्ट करिए। तो एक रिसर्चर अपना एक्सपर्टाइज को यूज करता है, क्या करता है? अपने एक्सपर्टाइज को यूज करता है सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए, और वो उसी सैंपल को सेलेक्ट करता है जो उसकी रिसर्च के लिए यूजफुल हो, इसलिए इसका नाम क्या है? पर्पसिव। और इसको एक और नाम से क्या जानते हैं? जजमेंट सैंपलिंग मेथड। ठीक है? तो रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके हिसाब से सैंपल को सेलेक्ट करना, दैट इज नोन एज पर्पसिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ वन, दैट इज स्नोबॉल सैंपल। देखिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है, स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है। देखिए स्नोबॉल सैंपलिंग एक स्पेसिफिक रिसर्च एरिया के लिए यूज होता है जहां आपको पॉपुलेशन ही मिलना बड़ा मुश्किल है। पॉपुलेशन बहुत हार्ड होता है मिलने में, मतलब आपको पॉपुलेशन मिलेगा ही नहीं। हो सकता है आपको ये एक ऐसी सीवियर डिसीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं जिसका आपको पॉपुलेशन की यूनिट ही ना मिले, बहुत सीवियर डिसीज है और बहुत अनकॉमन है, बहुत इजिली नहीं मिल पाती, वहां हम स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड की यूज करते हैं। और जैसे ही आप किसी एक यूनिट से मुलाकात करते हैं आपको और लोग भी मिलने चालू हो जाते हैं, दैट इज नोन एज स्नोबॉल। बहुत एक सीवियर डिसीज होती है जो बहुत अनकॉमन होती है, बहुत इजिली नहीं मिलती, वहां हम किसका यूज करते हैं? स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड का। ठीक है? तो वहां रेस्पोंडेंट वही हो सकता है जो उस डिसीज से सफर किया हो। भाई आप किसी ऐसे रेस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते किसी डिसीज के बारे में जो उसको हुई ही ना हो, उसके सिम्टम्स, वो कैसे ठीक होगा, उसमें क्या क्या परेशानियां होती हैं, तो ये वही बता पाएगा जिसको वो डिसीज हुई है। तो स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड वहां यूज होता है जहां पॉपुलेशन बहुत इजी वे में नहीं मिलता, पॉपुलेशन की यूनिट बहुत हार्ड, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट वे में मिलता है, और ये किसी स्पेसिफिक रिसर्च एरिया के लिए यूज होता है, दैट इज नोन एज स्नोबॉल सैंपलिंग। तो ये चारों नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के पार्ट है। फर्स्ट दैट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग, सेकंड दैट इज वॉलंटरली रिस्पॉन्स सैंपलिंग, थर्ड पर्पसिव सैंपलिंग, एंड फोर्थ दैट इज स्नोबॉल सैंपलिंग। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि सेंसस इन्वेस्टिगेशन और सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सेंसस इन्वेस्टिगेशन को कहाँ यूज करते हैं और सैंपल इन्वेस्टिगेशन को कहाँ यूज करते हैं, किसके रिजल्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और अगर हम मेथड ऑफ सैंपलिंग की बात करें तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के जो हमने टाइप पढ़ा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग मेथड, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड एंड क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग मेथड, इनके यूज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विद एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया, कौन सा होमोजीनियस में यूज होगा, कौन सा हेट्रोजीनियस में यूज होगा, स्ट्रेटिफाइड में ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लस्टर में ग्रुप को क्या कहते हैं, किस तरह के ग्रुप बनाते हैं, है ना। मैंने बताया था स्ट्रेटिफाइड दैट इज होमोजीनियस विद इन द ग्रुप एंड हेट्रोजीनियस बिटवीन द ग्रुप, और क्लस्टर जस्ट अपोजिट होता है, वो हेट्रोजीनियस विद इन द ग्रुप एंड होमोजीनियस बिटवीन द ग्रुप होता है। ऐसे ही हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड की बात करी जिसमें हमने बात करी कन्वीनियंस सैंपलिंग जो रिसर्चर के रीच पे हो, वॉलेंटरली रिस्पॉन्स,
पर्पजिव जो ऑब्जेक्टिव के ऊपर हो, रिसर्च ऑब्जेक्टिव के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड। तो काफी कुछ मेरे ख्याल से इस टॉपिक में कवर हुआ है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है, मैंने बताया कि ये रिसर्च मैथोडोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है और नेट के पेपर में आते हैं। और ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, और उसमें ऑप्शन में दिया होगा आपका सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड, तो आपको उसको टिक करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, और रिसर्च के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही यूज़ है, क्योंकि सैंपल को सेलेक्ट करना और किस टाइप के पॉपुलेशन में किस टाइप की सैम्पलिंग मेथड लगना और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपका पॉपुलेशन होमोजीनियस है और आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड लगा दिए, ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना। हो सकता है आपकी पॉपुलेशन की यूनिट बहुत छोटी हो, तो आप वहाँ सेंसस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस वीडियो लेक्चर से ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच